Dear students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject Computer Networking and Data Communication. Today we are going to see topic number 2.5 of Unit 2, and topic name is Advantages and Disadvantages of TCP/IP Protocol Suite. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to list the advantages and disadvantages of TCP/IP Protocol Suite. Course outcome that will get achieved is CO2. You will be able to use the relevant network model for the specified data communication system. Then PO1 will get satisfied, that is program outcome. There will be improvement in your basic as well as electronics engineering specific knowledge. PO4 will get satisfied. You will be able to perform various experiments with this knowledge using various engineering tools like cables, networking devices and computer system, and after that you will be able to test the performance of network. Then PO6 project management. With this knowledge you will be able to work on small projects or micro projects in a team or individually, and by doing this your oral, written communication and presentation skill and interpersonal skills are getting enhanced. Then whatever the knowledge you are taking here, that knowledge will be with you for lifetime. So PO7 lifelong learning is achieved. So all these are the CO and program outcomes that are satisfied or mapped. Then prerequisite. The prerequisite to this topic is you should know the diagram of TCP/IP protocol suite, and you should know the functions of all the layers of TCP/IP model. Now let us see advantages of TCP/IP model. It is an industry standard model that can be effectively deployed in practical networking problems. So networking में जो भी प्रॉब्लम्स थे तो वो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली हमने ओवरकम किए हैं TCP/IP मॉडल के थ्रू, और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल है, मीन्स इंडस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज़ वाई इट इज़ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल. एंड जो भी नेटवर्किंग में जो भी प्रॉब्लम्स थे वो पूरे यहाँ पे हमने ओवरकम किए हैं. देन इट इज़ इंटरऑपरेबल, मीन्स इट अलाउज क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशंस अमंग हेट्रोजेनस नेटवर्क. अगर दो डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स हैं सो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन करने का काम जो है वो TCP/IP मॉडल करता है. इसलिए इसको बोला जाता है कि इंटर ऑपरेबल, मीन्स two different types of networks can be connected and communicated with each other. Then it is an open protocol suite. It is not owned by any particular institute and so can be used by any individual or organization. So ये open protocol है, इसको किसी ने भी ओन नहीं किया है. सो कोई भी इंडिविजुअल या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट उसको freely use कर सकती है. That's why it is a open protocol suite. It is scalable client server architecture. This allows networks to be added without disturbing the current services. So ये client server architecture को follow करता है and it is scalable, means हम नेटवर्क को बहुत बड़ा बना सकते हैं. नंबर ऑफ नेटवर्क्स हम अपने नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं, या नंबर ऑफ सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं, बट विदाउट डिस्टर्बिंग द करंट सर्विसेज. हम अभी फ़िलहाल जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब ना करते हुए हम इस TCP/IP मॉडल को एक्सटेंड कर सकते हैं. सो इट इज़ स्केलेबल. It assigns an IP address to each computer on the network, thus making each device to be identifiable over the network. So नेटवर्क में जितने भी नोड्स या होस्ट कनेक्टेड है उनको IP एड्रेस असाइन करने का काम TCP/IP मॉडल करता है, सो दैट हम उनको यूनिकली नेटवर्क में आइडेंटिफाई कर सकें. दैट इज़ वाई इट असाइंस IP एड्रेसेस टू ईच एंड एवरी कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क, और हम उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं.
It assigns each site a domain name. It provides name and address resolution services. So पर्टिकुलर नेटवर्क को, पर्टिकुलर साइट को डोमेन नेम प्रोवाइड करने का काम करता है ये, दैट इज़ डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइड करता है. एंड हम एड्रेस रिजोल्यूशन कर सकते हैं इससे. सपोज देर इज़ एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू नेटवर्क्स, मीन्स दोनों नेटवर्क में किसी पीसी को हम सेम नेटवर्क, सेम आईपी एड्रेस अगर असाइन कर रहे हैं, सो वो जो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजोल्यूशन करने का काम भी टीसीपी आईपी मॉडल करता है. इसीलिए हमको यूनिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है. देन लेट अस सी डिसएडवांटेजेस. It is not generic in nature, so it fails to represent any protocol stack other than TCP/IP protocol suite. For example, it cannot describe the Bluetooth connection. So generic नहीं है मीन्स ये बहुत ज़्यादा जनरल नहीं है नेचर में, बहुत ज़्यादा जनरल नहीं है मीन्स एनी टाइप ऑफ सर्विसेज इट कैन नॉट अफोर्ड. किसी भी टाइप की सर्विसेज ये अफोर्ड नहीं कर सकता है. तो सिर्फ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वही सर्विसेज ये यूजर्स को प्रोवाइड करेगा. अदर देन दैट कोई डिफरेंट सर्विसेज ये प्रोवाइड नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल हमको ब्लूटूथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, ब्लूटूथ नेटवर्क वहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, सो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट इसको अफोर्ड नहीं करेगा या सपोर्ट नहीं करेगा. देन it does not clearly separate the concepts of services, interfaces and protocols. So it is not suitable to describe new technologies in new network. So इसमें जो है इंटरफेसेस और प्रोटोकॉल्स जो है इसके खुद के प्रोटोकॉल्स नहीं हैं, जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है उसका ये यूज़ करता है. इसीलिए ये जो पर्टिकुलर लेयर्स की सर्विसेज है उनको क्लैरिफाई नहीं करता है. इसीलिए न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भी ये सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि इसके खुद के पास प्रोटोकॉल्स नहीं हैं, वो कोई और दूसरे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है. इसीलिए मैंने एग्जांपल बताया था कि ब्लूटूथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, सो टीसीपी आईपी नेटवर्क के थ्रू हम इस न्यू टेक्नोलॉजी को लॉन्च नहीं कर सकते, या फिर ब्लूटूथ कनेक्शन ये सूटेबल नहीं है विद इन टीसीपी आईपी मॉडल. It does not distinguish between the data link and the physical layers, which has very different functionalities. The data link layer should concern with the transmission of frames. On the other hand, physical layer should lay down the physical characteristics of transmission. A proper model should segregate the two layers. जैसे कि OSI मॉडल में फिजिकल लेयर डिफरेंट होती है, डेटा लिंक लेयर डिफरेंट होती है. सो फिजिकल लेयर का काम होता है कि फिजिकल ट्रांसमिशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करना या फिजिकली डेटा को ट्रांसमिट करना. ये फिजिकल लेयर का एक सेपरेट फंक्शन होता है. और डेटा लिंक लेयर का एक सेपरेट फंक्शन होता है कि वो फ्रेम्स को तैयार करता है और फ्रेम्स को नेटवर्क में ट्रांसमिट करता है. तो ये डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ हैं डेटा लिंक लेयर की और फिजिकल लेयर की. लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल में सिर्फ इन नेटवर्क एक्सेस लेयर जो दी है ये दोनों फंक्शनलिटी को कंबाइन कर रही है. मीन्स यहाँ पे कोई सेपरेट फंक्शनलिटीज़ नहीं दी है नेटवर्क एक्सेस लेयर की. जो OSI मॉडल के लेयर से उसी फंक्शनलिटीज़ को इसने एम्बेड किया है. इसलिए हम बोल सकते हैं कि डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर्स की जो फंक्शनलिटीज़ है इसने प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं की है. इट वॉज ओरिजिनली डिज़ाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क्स. It is not optimized for small networks like LAN and WAN. सो ये ओरिजिनली डिज़ाइन सिर्फ WAN के लिए ही किया है, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क के लिए ही. बहुत बड़े नेटवर्क के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं. लेकिन छोटे छोटे नेटवर्क्स अगर होते हैं लाइक LAN, MAN और PAN, ये जो छोटे नेटवर्क्स होते हैं इसलिए हम TCP/IP रेफरेंस मॉडल का यूज़ नहीं कर सकते हैं. इट विल नॉट सपोर्ट इट. Among its suite of protocols, TCP and IP were carefully designed and well implemented. Some of the other protocols were developed and ad hoc and so proved to be unsuitable in long run. However, due to the popularity of the model, these protocols are being used even 30-40 years after their introduction.
सो इसके TCP/IP मॉडल को नाम दिया क्यों गया है, क्योंकि TCP और IP ये जो मेन प्रोटोकॉल्स हैं वही बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए इसको नाम दिया है TCP/IP मॉडल। सो ये दोनों भी प्रोटोकॉल से बहुत केयरफुली डिज़ाइन किए गए हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन चालू है। बट अदर प्रोटोकॉल्स जो है, जो हमने चारों लेयर्स पे भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स देखे हैं, उनको सिर्फ एडॉक बेसिस पे डेवलप किया गया है, टेम्प्रेरी बेसिस पे उनको डेवलप किया गया है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेंगे एंड इट इज़ अनसुटेबल इन लॉन्ग रन। सो ये मॉडल पॉपुलर होने की वजह से हमारे जो एडॉक प्रोटोकॉल्स हैं वो हम बोल सकते हैं कि इवन आफ्टर 30-40 ईयर्स के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन सब प्रोटोकॉल्स को। लेकिन TCP/IP ये दोनों जो प्रोटोकॉल्स है वो बहुत केयरफुली डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेड किए गए हैं, क्योंकि जो उनका यूज़ जो है फ्रिक्वेंटली इन दोनों ही प्रोटोकॉल का हो रहा है, लेकिन बाकी के जो प्रोटोकॉल्स हैं हम कुछ सालों के बाद हम उनको यूज़ करेंगे। So dear students, let us summarize today's lecture. Today we have studied advantages and disadvantages of TCP/IP reference model. I hope you might have understood today's lecture. If not understood, then feel free to post your queries on the following email ID. Thank you for listening the video. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.